Alright, good evening everyone. It's 4 p.m. and we are live again. My name is Pooja Nayak. Welcome to another live session of YFH Life Care, the House of Hygiene. Well, ladies and gentlemen, today we are going to welcome a very special guest of honor. He's going to join us very soon. Till then, I just wanted to brief you about the brand. So we are India's leading brand who sells the life care products and the personal hygiene product, as we call ourselves the House of Hygiene. We sell menstrual cups, which is available in 3 different sizes. Along with that, we have sanitary pads, baby diapers and adult diapers as well. So today we are going to talk about one very sensitive topic, and I think it's very common and it's very natural. आज का जो हमारा टॉपिक है which is break urinary incontinence with YFH Life Care. Now urinary incontinence is very common problem, and I think it can be seen in any age group. It's not something like that कि किसी एक particular age के लोगों को ही ये problems होती है. ये common problem है, common समस्या है, जो घर घर की समस्या है. And I think it's not shameful to talk on and talk about, right? So today I am going to call, and he's going to join us very soon, Dr. Darshan Wadekar sir. He's going to join us very soon. But till then, I just wanted you guys to stay tuned with this live because it's very sensitive topic. We are going to talk about urinary incontinence. Now, this is something जो हम सबके साथ कभी ना कभी हो रखा है या हो रहा है, और उसको हम कैसे रोक सकते हैं, उसके बारे में बात कर सकते हैं, कैसे उसको रोका जा सकता है, कैसे हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं, या इसके बारे में जो स्टोरीज हमने सुन रखी है आज तक, वो सारी जो प्रॉब्लम्स है और वो सारे जो क्वेश्चंस है, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस लाइव के दरमियान. एंड आई थिंक डॉक्टर इज गोइंग टू जॉइन अस वेरी सून. दर्शन सर हमको ज्वाइन करेंगे थोड़ी ही देर में. तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें. तब तक मैं आपको दर्शन सर के बारे में थोड़ी सी बातें बताना चाहती हूँ. ही इज अ गायनेकोलॉजिस्ट एज वेल एज लेप्रोस्कोपिक सर्जन. जो हमारी पेट की सारी सर्जरीज होती है उसको बोला जाता है लेप्रोस्कोपी. तो he is a laparoscopy surgeon and he is a gynecologist as well. So I think he is the perfect person to talk on this particular topic, which is urinary incontinence. Friends, I think it's very common problem and कभी हमने इसके बारे में ओपनली बात नहीं की है. तो चलिए आज ओपनली बात करते हैं इस टॉपिक पे. जितने भी लोग मुझे हाई कर रहे हैं मैं उनको I just want to say hi each one of you and welcome to another live session of YFH Life Care, the House of Hygiene. और हमारे आज तक के जितने भी लाइव्स हुए हैं उसमें आप लोगों की तरफ से हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है. सो वी आर मेकिंग श्योर दैट हम हर गुरुवार को, हर थर्सडे को हम एक एक्सपर्ट को यहाँ पे बुला के एक पर्टिकुलर टॉपिक को उठा के उस पर बात करते हैं. ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, मुद्दे हैं जिस पे कभी कोई बात नहीं करता है. इन जनरल थोड़ा हमें हम वी फील शाई अबाउट इट एंड वी कैन नॉट टॉक इन फ्रंट ऑफ फ्रेंड्स एंड फैमिली. So I think there is nothing shameful and wrong about it. So Nikhil is saying hi. Hi Nikhil. So yeah, we are all set to welcome Dr. Darshan Wadekar sir. He's going to join us very soon. Till then, आप अपने जो भी questions are related to urinary infection, urinary incontinence, जो हम control नहीं कर पाते, तो हम उसके बारे में आपको जो भी क्वेश्चंस है, प्रश्न है, वो आप एक बार ध्यान में रख के लिख के रखें, ताकि डॉक्टर हमें जब भी ज्वाइन इन करे तब हमारे पास सवाल रेडी होने चाहिए तो हम उनसे पूछ पाएं कि किस तरीके से हम आगे इस टॉपिक पे चर्चा कर सकें. ठीक है. अगर आपको इन बिटवीन अगर आपको कुछ ब्रांड के बारे में जानना है तो आप मुझसे वो भी पूछ सकते हैं. आई एम हियर टू हेल्प यू. YFH Life Care is basically India's leading brand जो बनाती है हमारी जो पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स है, जैसे कि सैनिटरी पैड्स हो गए, जैसे एडल्ट डायपर हो गए, बेबी डायपर हो गए,
ना हमने वो सारे टॉपिक्स पे ऑलरेडी बात कर ली है। सबसे पहला टॉपिक हमने लिया था बेबी डायपर्स, उसके बाद वी हैव डन अ लाइव फॉर द एडल्ट डायपर्स एज वेल, कि आप उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और वो इस्तेमाल करने में कोई भी झिझक महसूस ना करें। उसके साथ साथ उसके बाद हमने जो लाइव किया था दैट वाज रिगार्डिंग पीरियड्स, सैनिटरी पैड्स, टाइपून्स को आप कैसे यूज़ कर सकते हो, आप कैसे मेंस्ट्रुअल कप को यूज़ कर सकते हो और उसको यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है क्या समस्याएं होती, वो हमने लास्ट सेशन में कवर किया था। आई थिंक दैट वाज द क्वाइट हमने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था उस लाइव पे भी। सो ये सारे जो टॉपिक्स है, जो गर्ल्स प्रॉब्लम होती है, और ये सारी प्रॉब्लम्स में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बट आज का जो हमारा टॉपिक है विच इज़ अगेन इट्स वेरी वेरी कॉमन प्रॉब्लम विच इज़ यूरिनरी इनकंटिनेंस, जो हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, राइट। सो दैट इज समथिंग वेरी वेरी नेचुरल। आई थिंक डॉक्टर साहब आ चुके हैं, तो चलिए उनको हम ज्वाइन करेंगे। और मैं चाहती हूँ दर्शन सर, you please yes, I think he has sent me the request. Let's accept and let's okay, I am just waiting. All right. Hello. Yes sir. Yes, how are you? Okay, hello sir, good evening. Hi. How are you? Absolutely fine. All right, so first of all, thank you so much for joining in. And ladies and gentlemen, he is Dr. Darshan Wadekar sir. He's a gynecologist as well as laparoscopic surgeon. We are very grateful and thankful, sir, that you have joined us today. All right, तो चलिए अब सर आ चुके हैं और सर का टाइम भी बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज ही इज अ डॉक्टर। सो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं विच इज यूरिनरी इनकंटिनेंस। सर सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि ये जो टॉपिक है आप उस पर थोड़ा हमें बताइए व्हाट इज एग्जैक्टली यूरिनरी इनकंटिनेंस, जो सब जानना चाहते हैं। See, basically, incontinence, continence means रोक पाना, basically. जी। And incontinence means रोक नहीं पाना. जी। So, basically, a lot of women as well as men may have complaints कि जिसमें उनको बार-बार यूरिन पास करने जाना पड़े, या जैसे आप रोकना चाहते हैं पर नहीं रोक पाते हैं. Right. So that is one of the meanings of urinary incontinence. और ये काफी commonly देखा जाता है in females especially. So if you are having complaint of not able to hold urine, that means आपको जब लग रहा है कि मुझे यूरिन पास करने जाना है and you want to hold it for some time, अगर आप नहीं hold कर पा रहे हैं, that means you are having urinary incontinence. Cool. So first of all, सर ने हमें बहुत अच्छे से बताया कि what is exactly urinary incontinence. अब ये जो प्रॉब्लम है वो मैंने पहले भी बोला कि सबको होता है, कभी कभी हमें टेक्निकल टर्म्स पता नहीं होते, जो हमारे साथ हो भी रहा होता है बट हम उसको रिकग्नाइज नहीं करते, उसको इग्नोर कर देते हैं और हमें टेक्निकल चीजें पता नहीं होती। तो आई थिंक आज का जो हमारा लाइव सेशन है वो बहुत फ्रूटफुल होने वाला है, हेल्पफुल होने वाला है बहुत सारे लोगों को। सो सर, आई हैव सम मिथ्स जो मैंने लिखे हैं, जो मुझे आपसे पूछना है कि क्या ये सही है और क्या ये गलत है, आप मुझे उनका जवाब दें। सबसे पहला प्रश्न ये है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस इज बिकॉज ऑफ एजिंग, इज इट राइट और रॉन्ग? Practically in some form see, there are two things we call in medical factors. One is cause. Okay, cause मतलब कारण, ठीक है. तो age is not a reason. Okay, but age can be a factor. जैसे हम बोलते हैं कि हमारे मसल्स विद एज वीक होते हैं, तो काफी लोगों वी हैव डेफिनेटली सीन मोर कॉमन इन हायर एज ग्रुप, तो वो वन ऑफ द फैक्टर्स है, बट इट इज नॉट द रीजन कि एज के हिसाब से ही सबको होगा. सो दैट्स हाउ आई वुड पुट इट अक्रॉस. राइट. सो some terms it is possible but age is not the only cause जिसकी वजह से ये होता है. And but commonly seen in higher age group. Higher age group.
Okay, after Yes. after 60s or like 50s, after Actually 50s or स्पीकिंग, उसका जो कॉज है ना, रीजन, द कॉज फॉर यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस जो है उसके ऊपर डिपेंड करेगा विच एज ग्रुप में ये हो रहा है। ओके ओके कूल। सो ये सर ने ऐसा बोला है कि हो सकता है किसी को भी, बट हायर एज में चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। ओके एब्सोल्युटली। एंड ये जो क्वेश्चन है, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की वजह से, आप यूरिन को नहीं रोक पा रहे हैं, तो वाईएफएच कंपनी ने एक प्रोडक्ट वहां पे बनाया है, विच इज वाईएफएच 70s करके ये प्रोडक्ट है जो वेबसाइट पे अवेलेबल है। जो हम जिसको यूरिन का इश्यू होता है, जो यूरिन रोक नहीं पाते हैं, उनके लिए स्पेशली ये प्रोडक्ट बनाया गया है। तो आप बिल्कुल वेबसाइट पे जाके एक बार चेक करिएगा। ओके डॉक्टर सर, आगे बढ़ते हैं। हमारे एक और बातें हैं, कहानी है जो हमने सुन रखी है, जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। फ्लूइड इनटेक शुड बी रिड्यूस्ड, फ्लूइड इनटेक शुड बी रिड्यूस्ड। यस, आप तो क्या ये ये सही है या गलत है? ये बेसिकली कॉमन मिथ है। दिस इज अ कॉमन मिथ एक्चुअली, कि कॉमनली वी हियर दिस फ्रॉम मोस्ट ऑफ आवर पेशेंट्स, कि वो जब आते हैं तो क्या हमने पानी पीना कम कर दिया क्योंकि हमें बार बार डिस्टरबेंस होता है, बार बार जाना पड़ता है। तो काफी बार लोग ऐसा भी करते हैं कि फंक्शन पे पहले खाना पीना छोड़ देते हैं, सो दैट फंक्शन के टाइम पे ये प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग, बट इंस्टेड एक्चुअली इट इज बिकॉज यू नो, जैसे कॉजेज, आई डोंट नो इफ यू डिस्कस, बिकॉज कनेक्शन थोड़ा वीक था। जो कॉज है, कॉजेज ऑफ यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है, उसमें अगर यूरिन इन्फेक्शन है, सपोज वन ऑफ द कॉजेज, तो उसकी वजह से अगर आप यूरिन कम मतलब पानी कम पियोगे तो यूरिन फॉर्मेशन कम होगा, एंड दैट विल लीड टू मोर प्रॉब्लम्स। ओके, इसको मैं सिंप्लीफाइड वे में बताता हूँ कि जैसे अगर यूरिन इन्फेक्शन है, विच इज अ कॉमनेस्ट दिस थिंग cause for urinary incontinence, then in that case अगर आप यूरिन पानी कम पियोगे तो यूरिन पास कम होगा, और यूरिन पास कम होगा तो जो इन्फेक्शन है वो क्लियर आउट या फ्लश आउट होना चाहिए, वो कम होगा, विच विल लीड टू मोर प्रॉब्लम्स। सो एक्चुअली स्पीकिंग, डेफिनेटली अगर हमारा कॉज स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है या अदर फैक्टर्स है, तो उस फैक्टर्स में आप पानी कम पियोगे तो थोड़ा आपको लगेगा कि इट इज बेटर फॉर मी, बट इन प्रैक्टिस वी शुड नॉट डू दैट। एटलीस्ट 3 liters of fluid is a normal intake for every human being, so we should take it. That's all. 3 लीटर्स पर डे आपको इंटेक करना है, और जब हम वो रेगुलर करना छोड़ देते हैं, तब हमारे सर एक्चुअली शरीर का कचरा जो है, बेसिकली एकदम नॉर्मल भाषा में बोलूं तो वो हम यूरिन के थ्रू निकल जाता है, हमारे शरीर की गर्मियां भी निकल जाती है, वो ऐसा सुन रखा है हम सब ने। तो ये गलत बात हो जाएगी कि आप पानी पीना कम कर दोगे या फ्लूइड इंटेक लेना बंद कर दोगे, तो आपका ये प्रॉब्लम दूर नहीं होगा, प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। सो वो कोई किसी और कॉज हो जाएगा। उससे बेटर है कि आप रेगुलर जो 3 लीटर आपने सजेस्ट किया है सर, which is great. I think if we should follow all this advice आज जो हमें सर बता रहे हैं। So next question is, there is just one type of urinary incontinence. सिर्फ एक प्रकार का ही urinary incontinence होता है। Is it right or wrong? Not really actually. There are, as I told you, it is based on the causes. One of the commonest cause जो मैंने आपको बताया वो इन्फेक्शन भी है, और यूरिनरी इन्फेक्शन, जैसे स्पेशली मैं हमारे यहाँ पे काफी पेशेंट्स आते हैं तो हम उनको सिंपलेस्ट एग्जांपल देते हैं कि इन्फेक्शन का जो रीजन है, दैट इज वेरी कॉमन, स्पेशली व्हेन द सीजन चेंजेस। इफ यू ट्राई एंड अंडरस्टैंड द लिटिल बिट ऑफ फिजियोलॉजी इन दिस, कि जब सीजन चेंज होता है, जो हमारा लोअर बॉडी पार्ट है उसमें पसीना होने का मैक्सिमम चांस है, एंड सो यूरिन इन्फेक्शन होने का चांस मैक्सिमम इज इन दोज डेज व्हेन देयर इज अ चेंज इन सीजन, राइट? आपने भी नोटिस किया होगा कि जब भी सीजन चेंज होता है
तो स्वेटिंग बहुत ज्यादा होता है। अब Right. जैसे एक बार ये रेनी सीजन आ गया, नाउ एट दिस कांस्टेंट वेदर यू आर नॉट स्वेटिंग सो मच, but whenever there is a sudden change, that is the time you are sweating more, and so there is a higher likelihood of developing urine infection which will lead to incontinence, urge incontinence बोलते हैं इसको। जैसे आपको बार बार इच्छा हो जाती है कि यूरिन पास करना है पर निकलता बहुत कम, बिकॉज एक्चुअली क्वांटिटी ज्यादा नहीं होती है, वो सूजन की वजह से है, दैट इज urge incontinence. The other is stress incontinence. In fact, in female, stress incontinence is much more common, especially in women who have once delivered vaginally. So उसके बाद जो नीचे के मसल्स है, आपको एक मैं एग्जांपल पूछता हूँ, आपने एंटीनेटल क्लासेस के बारे में सुना है? प्रेगनेंसी क्लासेस, exercise, yoga classes. Yes, yes. Okay. Exercise yoga. Yes, I heard about. Yes, yoga classes. So there is always a stress और कि भाई प्रेगनेंसी के दौरान आपको एक्टिव रहना है, आपको एक्सरसाइज करना है, ये सारा चीज बताया जाता है। Have you ever heard of exercise after delivery? No. Not much. In fact, that is something which we suggest in all our patients जो जिनको हम डिलीवर करते हैं, उनको हम इसीलिए 15 days, 1 month, 1.5 months, 3 months पे बुलाते हैं कि वो pelvic exercises, for example उसका एक नाम है कीगल एक्सरसाइज, जो रेगुलरली वो करते हैं जिससे कि जो मसल्स वीक हुए होते हैं उनमें स्ट्रेंथ आती है, और वो स्ट्रेंथ आने की वजह से दे वीकनेस चली जाती है। दिस वीकनेस अगर रह जाती है तो दैट विल लीड टू स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। सो हम ऑलवेज जोर देते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए, विच इज गुड, बट उसके बाद का केयर के बारे में कोई नहीं बताता, एंड दैट इज द रीजन व्हाई स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस इज द कॉमनेस्ट। There are many other causes, functional causes also, and otherwise for urinary incontinence. Sometimes trauma is also one of the reasons. But when we take into consideration all these factors, definitely mild varieties may we can work upon. But on the higher sides, it's better to see a consultant, identify what is the cause, और फिर उसके ऊपर काम किया जा सकता है। Yeah, that I totally agree on this, that हमें always, we should always consult the doctor। और जो सर ने आपने भी हमें एक बात बहुत अच्छी बताई कि आफ्टर डिलीवरी भी एक्सरसाइज करना उतना ही महत्वपूर्ण होता है। और जब ये यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की हम बात करते हैं तो बहुत एम्बेरसिंग सिचुएशन सर हो जाती है कि कभी हम मीटिंग में गए या कहीं पे बैठे हैं, सो वी डोंट फील लाइक टू गो आउट। अगर हमें ये प्रॉब्लम है तो हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल भी हमारा उस पर भी थोड़ी इफेक्ट हो जाती है, बट दिस इज लाइक वेरी नॉर्मल। और सर मैं आपको ये हम बात ही कर रहे हैं इस टॉपिक पे, तो मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि आपके पास जैसे पेशेंट्स आते हैं तो आप उनको ये जिस पर्टिकुलर ये जो टॉपिक है उस पर कोई इश्यू है तो आप उनको कैसे एडवाइस करते हैं इन जनरल, बिकॉज मेंटली भी अभी इतना स्ट्रेसफुल लाइफ है कि हम इतना भाग रहे हैं, एवरीबॉडी इज रनिंग एंड हम मेंटली इसको इफेक्ट कर लेते हैं कभी कभी, स्पेशली आज की जनरेशन। तो आप कैसे एडवाइस करते हैं ऐसे पर्टिकुलर पेशेंट्स को कि कैसे आप अपने आप को कैरी कर सकते हैं और अपना ध्यान? In fact, I always say that our generation is blessed. We are blessed with digitalization, right? Yeah. We are blessed with all kinds of comfort, right? And we are blessed with a lot of knowledge also, right? Right. In the same way, we can utilize the adult diapers forms जो आते हैं आजकल, जिससे कि माइल्ड वेराइटीज में या स्पेशली जो इमरजेंसी सिचुएशंस है उसमें आपको डेफिनेटली वर्क कर सके। अर्लियर इट वाज वेरी डिफिकल्ट, आई कैन जस्ट इमेजिन हाउ पीपल वर मैनेजिंग इट इन दोज डेज। कपड़ा यूज करना, बार बार चेंज करना, एंड इट इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, बट using some form of diapers which are adult diapers or any form can be helpful at least till the treatment takes its course. एक बार आप ट्रीट हो जाते हो उसके बाद आपको शायद जरूरत नहीं पड़े, पर वो जो एक्यूट फेस है उस समय आपको उसकी जरूरत ज्यादा होगी।
देन बेस्ड ऑन द कॉज, जैसे मैंने बताया, अगर इन्फेक्शन एक कॉज है तो उसका ट्रीटमेंट, अगर स्ट्रेस यूरिनरी है तो उसका ट्रीटमेंट, वो कॉजेस को अगर आप आइडेंटिफाई करेंगे और उसको सही ट्रीटमेंट देंगे तो डेफिनेटली इट विल बी मोर यूजफुल इन लॉन्ग टर्म. ऑलराइट, सो सर ने बहुत अच्छी बात कही. अब अगर एंड आई ऑल्सो वांटेड टू आस्क यू वन थिंग सर, दैट आज भी लोग ऐसा फील करते हैं कि वो एडल्ट है तो वो डायपर्स नहीं पहन सकते. नाउ देयर आर पीपल हु थिंक्स लाइक दैट कि हम तो बड़े हैं तो हम क्यों पहने. तो आप प्लीज उस पर भी कुछ हमें हमारे ऑडियंस को प्लीज अवेयर कीजिए कि इट्स ओके, यू कैन वेयर डायपर्स. I would call this adult pants. So let's keep it simple. If you really feel so, as a human being, I think it is just that it's a disposable pant, right? So I put across in that sense, why do you want to put it as diapers? Diapers, okay, fine, you can call it diapers, I can call it pants. It's a disposable pant, right? हम वैसे भी disposable यूज ही यूज कर रहे हैं, whether it is gloves, whether it is mask, right? So if we can use that, we can use adult pants. Yeah. In fact, those are much better in terms of keeping the hygiene, especially. Yes, क्योंकि आज की डेट में we all know that right from our youngest kid who is probably 2-3 years old, मतलब 5 साल का बच्चा हो, वो भी उतना ही बिजी होता है जितना कि 50 साल के आपके बच्चे हो, right? So all age group is very busy. So in that terms, if you want to really keep the hygiene, especially infection, अगर आपको यूरिन में, I don't know if you are aware, one of the dreaded infection in body is called as urinary infection. Yes. क्योंकि वो यूरिन से पास होते हुए किडनीज तक चला जाता है. तो इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट is keeping it clean. And if you really want to keep it clean, then that is only way is to keep it dry. And right. If you do not have a help at home, आपके पास अगर कोई immediately change करने के लिए या मदद करने के लिए कोई नहीं हो, then it's a difficult task. So adult pants, definitely. Adult pants में कुछ भी shameful नहीं है, and I think sir ने बहुत best बोला. Yes, please. In fact, ऐसा है कि there are two mindsets. कुछ लोग जैसे जैसे एज करते हैं उनको रियलाइज होता है कि बच्चा होना ज्यादा अच्छा है, so they can use it as adult diapers. Otherwise, those who really want to still be mature, you can definitely call it adult pants, nothing else. But no shame in wearing it. Totally. So it's just like जैसे हम मास्क यूज करते हैं, जैसे हमको आदत हो गई है मास्क पहनने की, वैसे हम डायपर्स को भी इट्स डिस्पोजेबल पैंट्स. सर ने बहुत अच्छा नाम बोला, हमको बहुत अच्छा एक टर्म दिया. थैंक यू सो मच फॉर दैट. And YFH Life Care offers adult diapers. So guys, do check it out on the website. Everything is there available. So next myth ये है कि जो old people होते हैं after certain age, ये जो प्रॉब्लम होती है which is urinary incontinence, वो क्योर नहीं हो सकती, can't be treated. Is it right? I personally feel there are very few things in science which cannot be treated. There are many things definitely, but in general, urinary incontinence definitely can be treated. Okay, the reason being is the only problem which we are facing is कि एक मैं अगर एग्जांपल देता हूँ कि जो the biggest problem which we are actually facing in urinary incontinence is that the aspect of not disclosing the problem. Right. Not disclosing the problem in the sense that उस सोच के बारे में कि यूरिन का बारे में मैं डिस्कस कैसे करूं, उसके बारे में मैं जाके किससे बात करूं, ये प्रॉब्लम सबसे बड़ा है rather than treating the disease. ट्रीटमेंट डेफिनेटली मैक्सिमम मेडिकली हो सकता है. इनफैक्ट बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको हमने मेडिकली सर्टेन एक्सरसाइजेस एंड मेडिकल ट्रीटमेंट से ट्रीट किया है.
इन सम केसेस जहां पे जरूरी हो उनको सर्जिकल ट्रीटमेंट से भी बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है. बट मेरे हिसाब से आज की तारीख में इफ यू कैन आइडेंटिफाई अ कॉज देन ट्रीटमेंट इज डेफिनेटली देयर. Possible. इट इज जस्ट दैट वी हैव टू आइडेंटिफाई कारण क्या है. Yes, sir. Yes, So I really think that there are multiple stages. I am not, ये एक public platform है, so मैं इसमें details of the treatment पे नहीं जाऊंगा. But I can definitely tell you that if we identify the cause, we can definitely treat it. Yeah. And we will definitely हम सब ने आज सर ने बहुत अच्छी एडवाइस दी that आइडेंटिफाई करना और किसी को खुल के बताना, पहले तो खुल के बताना which is very important because we always think that we people will judge me if I talk about this problem and that problem, but I think it's gone now. We are living in a society where everything is open market, everything is there, so I think it's very important to talk about it. And so we have also heard about this bladder exercise, sorry, bladder training and Kegel exercises. तो थोड़ा उसके बारे में भी बता पाएं तो आप बेस्ट होगा प्लीज. Yeah, it is, that is exactly what I was telling you, that there is जो muscles है, जो हमारे स्टूल और यूरिन पास करने की जो जगह है उसके आजू बाजू के जो मसल्स है उसकी वीकनेस की वजह से ये प्रॉब्लम्स काफी बार होता है. और उसको टाइटन और स्ट्रेंथन करने के लिए राइट हम सब जाते हैं जिम में बाइसेप्स और ट्राइसेप्स बनाने के लिए, बट देयर आर अदर मसल्स आल्सो इन द बॉडी व्हिच आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. सो दोज मसल्स को ट्रेन करने के लिए कीगल एक्सरसाइज है. ओके, and these Kegel exercises can be done very routinely and very simply when you are in your personal zone. ठीक है, बट इसको एक सिंपलेस्ट वर्ड में बोलूं तो आपको यूरिन अभी लग रहा है या स्टूल अभी लग रहा है एंड यू वांट टू होल्ड इट फॉर सम टाइम बिकॉज यू डोंट हैव द राइट स्पेस फॉर इट, ओके, और द राइट एनवायरमेंट अवेलेबल फॉर दैट. उस समय जो मसल्स आप टाइटन करते हो दोज मसल्स हैव टू बी टाइटन एंड दैट विल बी द वे Kegel's exercise works. More details, I think it's better to discuss on a personal platform, whosoever needs it. Yes. But this is the way how you can actually do those exercises and be helpful in the long run. Right. Okay, so I think that's the right thing to do, that Kegel exercising and bladder training is there. तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो यू बेटर टू कंसल्ट अ डॉक्टर फर्स्ट एंड ही और शी विल ब्रीफ यू अबाउट द थिंग्स दैट हाउ आप कैसे इसको कम कर सकते हैं या उसको नाबूद कर सकते हैं. वो विल डेफिनेटली, दैट्स अ वेरी पर्सनल थिंग, एंड वो आप डॉक्टर एटलीस्ट आप किसी को भी ना बताएं बट अपने डॉक्टर को खुल के बता दें तो चीजें बहुत आसान हो जाती है. ऑलराइट सर, and the last myth that the adult diapers are the only option for managing urinary incontinence. I think for mild varieties, or as I told you कि जो acute phase है, जो जिस समय आपको ट्रीटमेंट हम करेंगे या ट्रीटमेंट देंगे उसका इफेक्ट आने में जो टाइम लगेगा, that is the time frame where these first line of treatment में definitely it will be helpful. It is not a treatment, but I would say कि first line of support जो आपको necessary है वो आपको उससे मिलता है. Yes, definitely. It is. We all know a lot of adult pants and diapers are used routinely also for other purposes. And जैसे अब काफी हायर एज ग्रुप वाले हैं जिनको पता नहीं चल रहा है और बैड में यूरिन हो जाता है, तो उन लोगों के लिए भी ये इस्तेमाल होता है. सो डेफिनेटली वी कैन यूज इट फॉर द फर्स्ट लाइन इनिशियल, जब तक यू कंसल्ट, यू फाइंड द कॉज एंड यू स्टार्ट ट्रीटिंग इट. दैट इज द टाइम वेयर डेफिनेटली दे आर वेरी यूजफुल इन दिस जोन. एंड लेटर ऑन वंस वी ट्रीट देम, आई थिंक वी विल बी रैश फ्री एंड डायपर फ्री ऑल्सो. ऑलराइट, सो आई थिंक हमारे आज के जो क्वेश्चंस थे, जो मेरे क्वेश्चंस थे, जो ऑलमोस्ट मुझे सबके जवाब मिल गए हैं डॉक्टर सर से.
अगर आपको कुछ पूछना है तो आपको मैं यहाँ पे थोड़ा टाइम देना चाहती हूँ, आप पूछिए, तब तक वी आर वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो रहा है तो फील फ्री टू आस्क द क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक विच इज यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, which is very common in any age group, and there is nothing to hide and there is nothing to feel shame about it. Better you talk with the doctor, the family members, and I think consultation is always preferable. I always make sure that you do consult your doctor before you do anything or you use anything. And at we, as at YFH Life Care, we have adult diapers and another products. I already shared with you YFH 17, which you can use for this particular problem, which is urinary incontinence. All right, so I think हमने already सारे questions short कर लिए हैं. So Darshan sir, once again, thank you so much for joining us live today, and I think that Thank was you. very sensitive topic जो हमने आज बात की है. And in fact, I would like openly, I would like to tell you, when I was like little young, like when I was in school, so it used to happen with me as well, but at that time I was not aware about this whole technical term that इसको ये बोला जाता है और इसका ये क्योर होता है. हम हमेशा प्रॉब्लम्स को इग्नोर करते जाते हैं, फिर वो बड़ा बड़ा हो जाता है, फिर वो बहुत प्रॉब्लम करता है. सो इट्स ऑलवेज बेटर टू, जब से शुरुआत हो रही है तब से पहले से ही हम, इट्स लाइक अ कोरोना सर, आई थिंक इट्स लाइक जस्ट कि हमें कोई प्रॉब्लम हो रही है तो पहले बताओ कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, सो उसका सोल्यूशन निकल सकता है. राइट. ओके दर्शन सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस लाइव टुडे, and thank you Thank for you. giving us your precious time. Thank you very much. Thank you so much, and all the best. Take care. Thank you so Bye. much. Thank you very much. Bye bye. So I think आप सबके जो questions होंगे, कुछ लोग शायद लाइव में पूछेंगे भी नहीं, they might be feeling hesitate about this, that हम नहीं पूछ सकते openly, but यही है हमारा, हम ये जितने भी लाइव्स कर रहे हैं उसका पर्पस ही ये है कि हम चाहते हैं कि आप बोले, आप अपनी समस्याओं को हमारे साथ शेयर करें, ताकि, और हम हर थर्सडे अलग अलग प्रकार के, अलग अलग फील्ड के जो डॉक्टर्स हैं, उन एक्सपर्ट्स हैं, उनको लाइव में ज्वाइन कर रहे हैं, ताकि आपके हमारे सबके जो क्वेश्चंस मिलके एक सोल्यूशन निकल पाए या किसी की जिंदगी बेहतर हो पाए. बट कहने का मतलब ये है एंड में कि बिल्कुल मत सोचना कि कौन क्या सोचेगा, मुझे कौन जज कर देगा, क्या कर देगा. आपकी हेल्थ कम फर्स्ट, सबसे ऊपर होती है इंसान की हेल्थ. तो उसी को ध्यान में रखते हुए आपको कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम्स हो रही है तो प्लीज डू take an appointment of doctor, go to doctor, ask him or her that how you can, you know, cure your problems. You can talk with your parents. Parents are like, they are the blessing, so हम हमेशा उनसे बात कर पाएंगे, ठीक है. But don't feel hesitate and don't hide from anybody. There is nothing to feel shame about it. All right, I think that was a great live, like very useful and very fruitful. I hope आपको भी आज कुछ जानने को मिलेगा और सीखने को मिलेगा. अगर मैं चाहती हूँ कि अगर आपको ये लाइव अच्छा लगा है या आपको लगता है कि आपके किसी काम आएगा, आपके नॉलेज किसी और के साथ शेयर करना चाहते हैं, आपके दोस्त के साथ, आपके परिवार के साथ, तो फील फ्री टू शेयर देम. एंड आई थिंक किसी की जिंदगी बदल सकती है, किसी को प्रॉब्लम हो रहा है तो वो बदल सकता है, किसी ने कोई सुन रखा है, कुछ मिथ है तो वो हम दूर करना चाहते हैं, इसलिए हम ये लाइव सेशन की सीरीज की हमने शुरुआत की है. आई थिंक इट्स टाइम टू गो नाउ. फिर से एक बार थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस लाइव इन टुडेज सेशन, and we will come soon with another expert in our next live session. Till then, take care of yourself, and take care of your family as well. So maintain social distancing, wear a mask, and take care of your health. This is Pooja Naik signing off from YFH Life Care, the House of Hygiene. Bye bye. Take care.